Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, economics, where we are talking about the sectors of Indian economy. Yes, we have tried to understand the primary, secondary and tertiary sector. We have understood the working of these sectors. We have understood the way these sectors are interdependent on each other. Along with this, there are some other facts also that we have understood. What we discussed in the last class was the growing importance of the tertiary sector. I am repeating it again that the way tertiary sector has grown up, it is a mark in economics. It is something that is very much observable, that is very much understood how the tertiary sector has gained importance. So while understanding this, we are trying to be very clear that the tertiary sector, got it? Please understand, tertiary sector and its importance and its growth has led to a different kind of an economy altogether. More and more people are now dependent on the service sector. ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ जो है वो सर्विस सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है, एंड these people whose lives are dependent on service sector, they are carrying on their work in simple manner. लेकिन टर्शरी सेक्टर में काम करने के लिए यू नीड टू बी हाईली एजुकेटेड. बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है if you want to be a part of the tertiary sector. Okay, अब क्या हो रहा है? The concept that we have understood in the last class was the concept of underemployed. This is a concept where we are understanding कि more and more people are there in agricultural sector. ज़्यादा से ज़्यादा primary sector में when we saw the graph, I had shown it to you in the book itself so that the graph is clear to you. When we see the graph to such a high level, to such a high extent, we understand this graphical presentation in a manner जिसमें कि हर बार चाहे वो 72, 73 की बात हो या फिर 2013, 14 या 11, 12 की बात हो, प्राइमरी सेक्टर हैज ऑलवेज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. ऐसा है नहीं. दिखता है that the people are employed, we can see it, we can feel it, but in reality it's not employed, it is underemployed. Workers in the agricultural sector, जहां 5 लोग काम कर सकते हैं वहां 10-10 लोग involved हैं. लक्ष्मी is there, unirrigated land is there, ज्वार grow कर रही है, अरहर grow कर रही है. 5 members of the family are working. 5 लोग जो हैं फैमिली में काम कर रहे हैं. थ्रू आउट द ईयर दे आर वर्किंग. कहीं जा नहीं सकते. दे कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स. नोवेयर एल्स दे कैन गो. तो एवरीवन इज वर्किंग. नन रिमेन्स. दिख नहीं रहा है. नोबडी सिटिंग आइडल. खाली कोई भी नहीं बैठा हुआ है. लेकिन देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. द लेबर एफर्ट gets divided. All these workers who are there, all these people who are working on the Lakshmi's land, workers क्या family members ही हैं. Each one is doing some work. कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं. No one is fully employed. That is called as underemployment, where it seems that people are employed, but in reality, they are not employed. दिख रहा है कि एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सच्चाई में वो एम्प्लॉयड नहीं है. As a result, what happens? It is their
effort is getting divided and they are underemployed, and this is the situation of underemployment. People are working but all of them are made to work less than their potential. जितना काम कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं. इसका कुछ क्राइटेरियाज है. They are working less than their potential. Got it? जितना, वही बात है, पोटेंशियल जितना है, एबिलिटी जितनी है, उससे कम काम कर रहे हैं. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. व्हाट हैपेंस इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू, अब जैसे कि अ पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियरली विजिबल. काम नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है. लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो दिखता नहीं है. इट इज नॉट क्लियरली विजिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट is not clearly visible. It is also called as disguised unemployment. ठीक है, disguised unemployment. Got it? Disguised है, not clearly, it's not very clear. Okay, अब unemployment and underemployment. Now please understand, don't get confused. Underemployment and disguised employment is equal. उसका मीनिंग सेम है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे सपोज देयर इज अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार है. ठीक है, अ लैंडलॉर्ड सुखराम इज देयर. एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो मीनिंग वुड बी मोर क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. Disguised. Okay, Lakshmi की फैमिली में भी the same thing was there. It seems, देख के ऐसा लग रहा है कि everybody is employed, लेकिन reality में they are not employed. Okay, there are some extra efforts to be done for that employment. Got it? इस चीज को clearly समझना बहुत जरूरी है. अब suppose a landlord is there, सुखराम. Suppose a landlord Sukhram is there. Okay, and he comes and hires one or two members of the family. He comes and hires one or two member of the family. किस फैमिली की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ द फैमिली ऑफ लक्ष्मी. फैमिली ऑफ लक्ष्मी. हम लक्ष्मी की फैमिली की बात कर रहे हैं. ठीक है, 10 people were there. सारे के सारे खेत पे जा रहे हैं. खेत पे जाके सारे के सारे काम कर रहे हैं. दिख रहा है काम कर रहे हैं, रियलिटी में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. सो more than people, the people who are there underemployed हैं. अब क्या हो रहा है, स्मॉल प्लॉट पे लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम. सुखराम आके लक्ष्मी की फैमिली से 2 लोगों को ले जाके उन्होंने अपने यहाँ पे किसी काम पे लगा दिया. सो out of how many members were there in Lakshmi's family members, 5 members were there. 3 लोगों का काम 5 लोग कर रहे थे. अब 2 लोगों को सुखराम जी उठा के ले गए. 2 लोगों को सुखराम जी अपने यहाँ काम करा रहे हैं. सो सुखराम जी जब काम करा रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, द फैमिली इनकम इंक्रीजेस. गॉट इट?
This is what is to be understood. Now, Lakshmi's family has extra income. अलग से इनको इनकम हो रही है एंड दे आर बीइंग पेड सैलरी मिल रही है, एक्स्ट्रा इनकम थ्रू wages. Got it? This salary is a big support for Lakshmi's family. इसको हमको इस तरह समझना है, we do not need 5 people to look after that. छोटी सी जमीन है, on that small plot of land 5 people are working. What is the need of that? 2 people moving out does not affect the production on their farm. 2 people moving out does not affect production on their farm. उनके फार्म में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है. नाउ दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑन देयर फार्म. ऊपर वाले एग्जाम्पल, अभी जो हमने ये एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, 2 people में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री. 2 लोग पहले भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते थे. सो once again the earning of the family would increase. So 2 people can work in factory. It is hardly having any effect on the working of the land. वो जो जमीन है वहां पे हार्डली कोई भी असर पड़ रहा है. The earning of the family would increase and they would also continue to produce. जितना लैंड में जो खेती हो रही थी, the earning of the family would increase. ठीक है, फैक्ट्री में काम करने की वजह से फैमिली की अर्निंग बढ़ गई. फैमिली अर्न कर रही है, खेतों का भी काम चल रहा है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड. विदाउट अफेक्टिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड. गॉट इट? जो उनका जमीन पे जो काम चल रहा था वो एज इट इज चलता रहेगा, प्लस सम एक्स्ट्रा हेल्प विल बी दे गेटिंग. सुखराम आके 2 लोगों को ले गए, 2 लोग और फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं. फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आने के बाद थोड़ा सा खेत में काम कर सकते हैं. दैट इज हाउ द वर्क नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ये सारा काम इसी तरह से बांटना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि देयर वुड बी अ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड दिख रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वह काम नहीं कर रहे हैं. लाखों फार्मर हैं लक्ष्मी की तरह. देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, जहां से कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पीपल आर लुकिंग लाइक एम्प्लॉयड, लेकिन ये एम्प्लॉयड नहीं है. या तो इनके एजुकेशन का कुछ इंतजाम हो जाए, दे गो टू द सिटी, दे गेट सम एजुकेशन, या फिर कुछ और तरीके से फैमिली की इनकम को बढ़ाने का, सोर्स को बढ़ाने का तरीका खोजना पड़ेगा. गॉट इट चिल्ड्रन? Now students, as we were talking about Lakshmi and her family, so what we are discussing here is that lack of farmers are there like Lakshmi in India. And इसका मतलब ये होता है कि अगर we remove a lot of people from agricultural sector, वहाँ से अगर हमने उनको हटा दिया एंड वी प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग एट वन प्लेस ओनली, एंड अगर उनको प्रॉपर वर्क वी गिव देम एल्सवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क, बाकी का काम जो लोग कर रहे हैं,
इट वुड इंक्रीज, टोटल फैमिली इनकम जो है वो बढ़ जाएगी. दैट इज़ देयर. एंड if 10 people are involved at the work where only 2 people can do that work, that does not make a sense. They should always think about a way in which family income should increase. क्या होता है family income increase होने से the income of the society will also increase, standard of living will increase, it will give us a proper economic outcome. Okay, so total family income has to increase, we need to take care of that. Okay, अब क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट उस समय भी होता है इन अदर सेक्टर्स, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स आर देयर, बहुत सारे वर्कर्स हैं सर्विस सेक्टर में. ठीक है, हमने जब वी वर टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉबलर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं ना, दे आर पीपल इन्वॉल्व इन मीनियल वर्क. ठीक है, डेली एम्प्लॉयमेंट के लिए दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन एंड दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स. हाँ, क्या क्या काम कर रहे हैं ये देखो, पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, रिपेयर पर्सन हैं, एंड बहुत सारे, देयर आर मेनी अदर ऑड जॉब्स दैट दीज पीपल आर डूइंग. तो एवरी डे दे आर नॉट फाइंडिंग वर्क. हर एक दिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि काम नहीं मिल रहा है. इसीलिए हम ये देखना चाहेंगे, वी विल बी सीइंग अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, दे आर पुशिंग अ कार्ट. हाँ, लेबरर का काम करते करते, ठीक है, बैल, वो जो गाड़ी नहीं होती, हाथ गाड़ी जो होती है जिसको धक्का दे रहे हैं, खींच के लेके जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स. गॉट इट. तो जब काम नहीं मिलता है तो वो कुछ भी काम करते हैं कि द पीपल आर देयर ऑन द पुशिंग अ कार्ट या फिर सेलिंग समथिंग, जहाँ पे दे आर स्पेंडिंग द होल डे लेकिन दे आर अर्निंग वेरी लेस. इनकी जो इनकम है, इनकम स्ट्रैटेजी इज़ वेरी लिटिल. तो ये क्यों कर रहे हैं ये काम? दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़. काम करने का उपाय इनके पास ज़्यादा नहीं है. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलना बहुत ज़रूरी है. दे आर लुकिंग फॉर सम और द अदर वे ऑफ अर्निंग सम मनी. कुछ न कुछ तरीके से ये काम करना चाह रहे हैं, बट व्हेन दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्क दे आर पुलिंग द हाथ गाड़ी. सिंपल लैंग्वेज में आई एम टेलिंग. गॉट इट. सो दे आर डूइंग दिस वर्क क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. हो सकता है वो कुछ और काम कर पाएँ, माइट बी पॉसिबल दे कैन डू सम अदर वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट वर्क. नाउ वी सी दिस activity. Actually I wanted to show you this activity children, जिसमें कि data is given in graph 2 and 3. graph 2 and 3 करना है. we need to fill up this data here. सबसे पहले शेयर इन DGP 1972-73 का शेयर हमको यहाँ पर लिखना है. we need to write down the share in the GDP 72-73. here it is given and this is the graph 3. got it. so here they are saying कि graph 2 and 3 को देख के we have to answer these questions. 72-73 का GDP हम देखेंगे, फिर 73-74 शेयर इन GDP एंड शेयर इन एम्प्लॉयमेंट. व्हेन वी सी द ग्राफ 2 and 3 तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको क्लियर होंगी. जस्ट लेट्स चेक द ग्राफ दैट इज़ गिवन हियर. ये देखो, this is the share in GDP. शेयर इन GDP 72-73 का यहाँ दिया हुआ है. 2011-12 is given there and 2013-14 is here. When we have to calculate 100%, पूरा 100% का calculation है जिसमें the 100% has been divided into 3 parts. So we need to check these 3 to answer it accordingly. उसी हिसाब से हमको ये जो है ये डील करना है. Got it children? तो
when we are discussing this, when we are talking about this, so the the gross domestic product that is there, it is very clearly mentioned here. Got it? Now, when we see this, their graph 3 जब हम देखते हैं, then we find their share in the economy, their share in the employment में all the time it is the primary sector which is giving maximum employment. कहने को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये दिख रहा है मैक्सिमम, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जस्ट फॉर शोइंग पर्पस, just for just for showing sake, here they are showing this kind of a graphical structure. Got it? Now when we are seeing this graphical structure, so we are to understand कि share in employment कितना है, share in here has been mentioned, percentage has to be mentioned here. अब when we see this question, what are the changes we are observing in the primary sector, span of primary sector में हम क्या क्या changes देख रहे हैं, what are the changes that we are seeing in the primary sector 40 years में. तो primary sector we are seeing कि अलग अलग ईयर्स में अलग अलग है. दैट इज़ कि प्राइमरी सेक्टर हैज़ गॉन लो मीन्स कि इनकम लेवल में, इनकम के लिए पहले प्राइमरी सेक्टर से मैक्सिमम इनकम आ रहा था, अभी द इनकम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैज़ शोन अ लो ग्राफ, एंड द चेंजेस दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन द प्राइमरी सेक्टर 40 years में, दैट इज़ डिफरेंट. Got it? 72, 73, 73, 74, 11, 12, 13, 14 may these changes were observable. These changes we can easily find it out. अब करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे चूज करना है. अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स. अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क. लोग काम नहीं करना चाहते हैं. देन देयर इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं है, दे वॉन्ट टू वर्क. अंडर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी घर में नहीं बैठ रहा है. ऑल ऑफ देम आर हैव gone out to work. They want to work and they are working in a lazy manner. No, they are working less than what they are capable of doing. जितना काम वो कर सकते हैं उससे बहुत ही कम काम कर रहे हैं, means their capability is less. They are working less than their potential. Whatever work they can do, they are doing less than that. They are not paid for their work. इनको जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं. Of course ये तो है, लेकिन the most appropriate answer is number 3. Got it? इसके बाद compare and contrast the changes. Changes जो हो India, whatever changes we are witnessing or whatever changes are happening with the pattern पहले के टाइम का जो था in the developed countries, उससे अभी pattern is changing. कैसे? What kind of changes are there between sectors? These sectors में changes were desired लेकिन did not happen in India. India में it has not happened. So comparing and contrasting the changes, the pattern that was observed for developed countries के लिए हम इसमें जो changes होंगे between these were of course desired, लेकिन this could not happen in India. इंडिया में ये चीज़ें हो नहीं सकती. Got it? तो अब क्या changes pattern है डेवलप्ड कंट्रीज में? Developed countries में tertiary sector has grown. Tertiary sector has grown in our country also, लेकिन here we have still lack of employment तो नहीं कहेंगे, but definitely lack of opportunity भी नहीं कहेंगे, लेकिन जितना काम होना चाहिए, whatever work should be there, उतना उस तरीके का काम नहीं हो रहा है.
especially we have to see that more and more people are involved into the working sector. तो वर्किंग सेक्टर में अगर ये इन्वॉल्व हैं, इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन द वर्किंग सेक्टर, तो क्या इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है? दे मस्ट गेट वेल एजुकेटेड. दे आर नॉट वेल एजुकेटेड. तो एजुकेशन इज़ द मेजर क्राइटेरिया. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पहली चीज़ ये है. सो गवर्नमेंट इज़ लैगिंग बैक. गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे रह रही है. टर्शरी सेक्टर के इम्प्रूवमेंट में पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द टर्शरी सेक्टर, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड. गॉट इट? सो वी नीड टू सी दैट. एंड इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में भी वी नीड टू पे अटेंशन, because I told you that there needs to be a balance between primary, secondary and tertiary sector. Primary, secondary and tertiary में if the balance is not there, अगर balance नहीं होगा तो it is very difficult to work. Primary low जाता जाएगा and tertiary cannot take up. Tertiary में भी प्रॉब्लम होती रहेगी. तो हमको ये देखना है कि ये बैलेंस सम हाउ जो है वो मेंटेन रहे. वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि इट लीड्स द नेशन टूवर्ड्स लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर देखना है तो ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू सी दैट देयर इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड दिस इज समवेयर लैकिंग. कहीं ना कहीं पे इसकी कमी रह जाती है. तो वी शुड बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए चिंता करना बहुत ज़रूरी है. ओके. एंड अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, वॉट एवर डिस्कशन इज़ देयर, इसमें हम देख सकते हैं कि दैट द कंट्रीज देन देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर में वी आर फाइंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, वेयर वी आर वेस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक वेस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स ना. 2 लोगों का काम 10 आदमी कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है. सो द पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? हाउ आर वी गोइंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल? ये हमको इधर सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे हम समझना है. जैसे वी हैव टू टेक द केस ऑफ लक्ष्मी. लक्ष्मी जो है 2 हेक्टेयर गेटेड लैंड है एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव स्पेंड सम मनी or banks can provide a loan. Bank में भी Lakshmi can go for the loans क्योंकि she wants to construct a well for her family. फैमिली के लिए उसको एक कुएं का निर्माण करना है to irrigate the land. ज़मीन को इरिगेट करने के लिए कुएं का निर्माण करना है. तो लक्ष्मी लैंड को तभी इरिगेट कर पाएगी, she has to take a second crop. सेकेंड क्रॉप क्या है? wheat. During the Rabi season there is wheat. तो Lakshmi has to irrigate her land. She has to take the second crop wheat Rabi season में. कोई ना कोई एक क्रॉप लेके ही आगे बढ़ने से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. अब जैसे 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट, 1 हेक्टेयर में जब शी इज़ ग्रोइंग व्हीट, इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days. 1 हेक्टेयर लैंड में 50 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. क्या क्या काम हो रहा है? सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार. तो 2 मेंबर्स को उतना अगर इनकम हो रहा है तो दैट इज़ वेरी वेल, गुड एंड फाइन. उसी सिस्टम को लेके आगे बढ़ना चाहिए. गॉट इट चिल्ड्रन? So this is what we have discussed today. Further we'll be discussing in the next class, children. Till then, thank you so much and all the best to you.